Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are doing very well. This is your English teacher, Miss Azmana, and I'm here with your Week 8 home task. Now, students, the topic for today's discussion is future continuous tense. We are not only going to do the sentences of future tense, but we are also going to translate. We'll learn how to translate the Urdu future continuous sentences into English continuous sentences. Now students, let's see what is the structure of future continuous sentence. Now remember, we know already that the basic auxiliary or modal verb we can say that we can use to indicate our future tense is will and shall. Don't forget that. But the difference between indefinite and continuous is that future indefinite is not going to have be with it, but future continuous is going to have be with will and be with shall. Now let's see. I, we, you, they, he, she, it, or any name of the person or object plus the fourth form of verb and the object. Now students, this is going to be the structure of future continuous tense. Now when I say I can use I and then the fourth form of verb and then the object. We, fourth form of verb and then the object. We are not supposed to forget that we will be adding these important things, will be and shall be. Alright, now let's see. We are going to begin with question statements. Will she be going with me? क्या वो मेरे साथ जा रही होगी? Now you see, I already told you in the last video that ga, gi, ga tells us that we are going to use future sentence. Now what other things are there? Rahe, he. This is going to tell us that we'll be using future continuous tense. क्या वो मेरे साथ जा रही होगी? Will you be getting me? क्या तुमको मेरी बात की समझ आ रही होगी? Now if it's a question, the will come in the beginning. क्या वो टीवी देख रहे होंगे? Will they be watching the TV? क्या आप रो रहे होंगे? Will you be crying? वो अपने बच्चों को क्या बता रहा होगा? What will he be telling his children? क्या वो किताब पढ़ रहे होंगी? Will she be reading the book? Now students, it is very important to know the structure of Urdu sentence of future continuous tense so that you may translate it easily in your exam. सवाल या जुमले कैसे दिखेंगे आपको आपके इम्तहान में? सवाल या फिक्रों में shall और will फिक्रा के शुरू में लिखा जाता है, फिर फाइल और be बाद में पहली फॉर्म ing वाली सूरत में आता है. Let's check example. उर्दू में आपके पास जुमला होगा, क्या चौकीदार पहरा दे रहा होगा? क्या को आप will में तब्दील करेंगे? Will the watchman be watching? क्या सिपाही चोर का ताकुब कर रहे होंगे? Will the soldiers be chasing the thief? अब सवाल या नफी जुमले कैसे बनेंगे? फिक्रे के आगाज में shall और will तो आएगा, फिर बीच में not भी आएगा और be भी आएगा, आखिर में
पहली फॉर्म यानी आईएनजी वर्ब की सूरत में होगी, यानी कि फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। चलिए देखते हैं कि आपको इम्तहान में फ्यूचर कंटिन्यूअस सवालिया जुमले जो नफ़ी में होंगे कैसे आएंगे। क्या मुसाफिर रेल के पुल से नहीं गुजर रहे होंगे? Will the passengers not be passing on the railway bridge? क्या आप 2 घंटे तक मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे? Will you not be waiting for me till 2 hours? क्या कुत्ते भौंक नहीं रहे होंगे? Will the dogs not be barking? तो ये हुए आपके सवालिया नफ़ी जुमले और सवालिया जुमले। अब इम्तहान में जब भी आपके पास या आपके सामने इस तरह के जुमले उर्दू में आएंगे, you are going to translate them this way. Don't forget to put will in the beginning and be in the middle. क्योंकि हम ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं, इसलिए हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें ये पता हो कि उर्दू में हमारे पास इम्तहान में जुमले किस सूरत में आएंगे। वो जुमले कुछ इस तरह से होंगे, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। तलबा घर वापस जा रहे होंगे, जा रहे होंगे। हम मकान में सफ़ेदी कर रहे होंगे, मैं किताब की जल्द बना रहा होऊंगा। ज़ख्मी का खून बह रहा होगा, अच्छे दुकानदार माल ज़ख़ीरा नहीं कर रहे होंगे, नेक आदमी दूध में पानी नहीं मिला रहा होगा, वो माल सस्ता नहीं बेच रहा होगा, धोबी कब कपड़े निचोड़ रहा होगा, क्या मुसाफिर घर पहुंच रहे होंगे, वो क्यों झूठ बोल रहा होगा। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि गा, रहा होगा, रहे होंगे, ये सारे आखिर के निशानियां हैं जो हमें बताएंगी कि हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस में अपने सेंटेंस को इंग्लिश में लिखना है। तो स्टूडेंट्स, अब आपको ये समझ आ गई होगी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के उर्दू के जुमलों को इंग्लिश में कैसे इस्तेमाल करना है, इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है। लेकिन अब हम करेंगे थोड़ी सी रिवीजन और कुछ चीज़ों को बहुत क्लियर, सो दैट यू मे रिमेंबर इट टिल द एंड ऑफ द एग्जाम्स एंड टिल द एंड ऑफ योर लाइफ, आई वुड से। चलिए ये थोड़ी सी चीज़ों को याद रखने के लिए डिटेल्स पढ़ते हैं। ये टेंस ऐसे कामों को जाहिर करता है जो मुस्तकबिल में हो रहा होगा। हो रहा होगा कब? मुस्तकबिल में। इस टेंस की निशानी है कि इसके आखिर में रहा होगा, रहे होंगे या रही होगी वगैरह आते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, रहा होगा, ये आपने 3 लफ्ज़ नहीं भूलने। अगर आपके सेंटेंस में यानी उर्दू के जुमले में ये 3 लफ्ज़ आखिर में आ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी निशानी है इस चीज़ की दैट यू आर गोइंग टू ट्रांसलेट योर सेंटेंस इनटू फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का क्या मतलब है, किस चीज़ का इस्तेमाल उन जुमलों में? इस टेंस के जुमलों में शैल बी या विल बी का इस्तेमाल होता है और इनके बाद वर्ब की पहली हालत के साथ ing का इजाफा होता है, यानी the structure that you will be using in your sentence is going to be any subject, he, she, it, they, we, I, you, plus shall or will be, shall be or will be, plus verb कौन सा वाला? Fourth form of verb, that is verb with ing. Now let's practice a little उर्दू के जुमलों के साथ इंग्लिश के जुमलों का इस्तेमाल। वो लिख रही होगी, she will be writing, रही होगी, will be writing। बारिश हो रही होगी, रही होगी, it will be raining। वो कुत्ते को छड़ी से मार रहा होगा, he will be beating the dog
with stick. सी 3 लफ्ज जो आपने नहीं भूलने ताकि आप ऐसे ट्रांसलेट कर सकें। अब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़े से नेगेटिव सेंटेंसेस की यानी मनफी जुमलों की। शैल या विल के बाद नॉट लगा दें। शैल या विल के बाद नॉट। ओके, लेट्स सी द एग्जांपल। तुम गरीबों की मदद नहीं कर रहे होगे। You will not be helping the poor. मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँगा। I shall not be reading the book. See, shall के बाद not आ गया, will के बाद भी not आ गया। अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस को लेके। यानी सवालिया फिक्रों में will या shall को सब्जेक्ट के पहले इस्तेमाल किया जाता है। जैसे किसान फसल कब बो रहे होंगे? When will the farmers be sowing crops? अब देखिए will कब आया? सब्जेक्ट से पहले, और सब्जेक्ट के बाद क्या आया? be, यानी सब्जेक्ट will और be के बीच में आएगा। तुम तंग क्यों कर रहे होगे? Why will you be teasing? यहाँ भी देखिए सब्जेक्ट कहाँ आया? will और be के बीच में, और शुरू में आपका सवालिया वर्ड यानी when w words आए। आई होप स्टूडेंट्स आपको अब फ्यूचर कंटिन्यूअस उर्दू के जुमले को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में कोई मसला दरकार नहीं होगा। Thank you very much, students. I hope now it's very clear to you that how to translate your sentences of future continuous tense Urdu to English. Thank you very much. Good luck for your work.